ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਹੈਲਥ ਸ਼ੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਆ ਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੋਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਜਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡਸ ਏਰੀਆ। ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਨੀਅਰ orthopedic surgeon, consultant orthopedic surgeon in the UK. Not only that, he is a past ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਮੌਲ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਜਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੀਅਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੀਅਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਜੀਪੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਦਾ ਏਜ 60s 70s ਈਵਨ 50s ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਟੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੋਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਗੋਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀ ਇਜ਼ ਗਿਵਿੰਗ ਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮ ਜਾਂ ਸਵੀਅਰ ਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨੀ ਦੀ ਪੇਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੋਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਪੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਜਾਂ MRI ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਏ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਆ ਕਿ उनको कब लेके आना चाहिए पेशेंट्स को आपके पास? ਦੇਖੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੀਅਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਲਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਵੀਅਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਪਾਇਨੀਅਰ ਨੀ ਸਰਜਨ। ਸਾਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲਾਈਵ ਨੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਊਟ ਨੀ ਸਰਜਰੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਵੀਅਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MRI ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਵੀਅਰ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਡਲਿੰਗ ਗੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ जीपी ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ इन्वेस्टिगेट करा के रेफ़र कराना चाहिए। फिर आप बताएंगे डॉक्टर प्रकाश के वो कैसे फिर आप आगे करते हैं उसको, आप कैसे असेस करते हैं नी को? So you, Professor Divya Prakash, I'm sorry I don't have a knee problem today, but मैं आपके गोडे You're ਨੂੰ lucky. ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਡੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੇਬੀ ਟੇਕ ਇਟ ਫਰਮ देयर, है ना? ये तो मैं आपके नी को मैं एग्ज़ाम ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि मेरे घुटने में भी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मैं भी ज़मीन पर नहीं बैठ पाता हूँ। तो ये आप इस बात को नहीं समझना कि आप अगर ज़मीन पर अगर नहीं बैठ पाते हो मतलब कुछ घुटने में ख़राबी है, वैसी बात नहीं है। और आपने जैसे कहा कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जैसे गिव वे कर देती है घुटना। सीढ़ियाँ चढ़ने में ज़्यादातर लोगों को तकलीफ़ होती है, कभी लोगों को ऊपर जाने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, कभी नीचे आने में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। घबराना नहीं है, वो एक ही पिक्चर के दूसरे पहलू हैं। तो उससे आपको समझना चाहिए कि नहीं, आपके घुटने में प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर नाल जाना है। और एक बार आप डॉक्टर नाल जाएंगे ना तो फिर उसके बाद वो आपको असेस करेंगे। तो उसकी असेसमेंट मैं आपके घुटने पर दिखाता हूँ। चलो जी, जैसे आप पीछे होके बैठ जाओ। हाँ जी। लत्ता सीधी करो। देखो इनका घुट्टा बिल्कुल सही है, ठीक है। जब आपको तकलीफ होती है आपका घुट्टा ऐसा नहीं दिखेगा, आपका घुट्टा दिखेगा ऐसा कि जैसे ये इधर मुड़ गया है। दूसरी चीज़ होगी कि आप ये जैसे बिल्कुल सीधी हो जाती है ना, ऐसा नहीं होगा, आपका घुट्टा रहेगा थोड़ा सा ऐसा बेंड किया हुआ। फिर इनका घुट्टा देखो कितनी अच्छी तरह से पीछे तक मुड़ गया है, आपका नहीं मुड़ेगा, आपका इतने ही तक आकर के रुक जाएगा। और बहुत बार आप देखोगे कि इत्थे सूजन हो गई है, इत्थे सूजन हो गई है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोगों को एसेस करना। और मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आपको एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि घुट्टा एक जॉइंट नहीं है, घुट्टा 3 जॉइंट है। एक सामने का जॉइंट है, एक अंदर का है और एक बाहर का है। और सारी जगह एक साथ आर्थराइटिस नहीं शुरू होती है, कभी इत्थे शुरू होती है, कभी इत्थे होती है, कभी इत्थे होती है। और ये हमारे लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि मैं पता कर लूँ कि ये तकलीफ़ कहाँ पे शुरू हो रही है और तकलीफ़ कहाँ है। क्योंकि अगर एक कोने में तकलीफ़ है तो फिर मैं पूरे घुट्टे को क्यों डैमेज करूँ, पूरे घुट्टे को क्यों काटूँ, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो वो असेसमेंट क्लिनिकली होती है, मैं पूरे इनको जॉइंट को एग्जामिन करके करता हूँ। फिर एक्सरे के स्पेशल व्यूज़ होते हैं जो इधर को भी देखेंगे, इधर को भी देखेंगे, और इस जॉइंट को भी वो नीचे से स्लाइड करती हुई एक्सरे जाती है, वो उसको भी असेस करते हैं। और इनके बियॉन्ड अगर हमें कुछ लगता है कि और प्रॉब्लम है तो एमआरआई हम करते हैं। तो एमआरआई से हमें पूरी जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो हर एक पेशेंट के लिए, हर एक इंसान के लिए जो सबसे उचित है वो हम बताते हैं। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਸੀਵੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ऑपरेशन ਦੀ ਗੱਲ, आप कब जब वहाँ तक जब पहुँचते हो कि उसके साथ बात करनी है कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, थोड़ा सा वो डिस्कशन तक पहुँच गया या इज देयर समथिंग बिफोर दैट दैट यू लाइक टू? नहीं, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। अगर आपके पास तकलीफ़ है, देखो हर एक इंसान की तकलीफ़ की परसेप्शन अलग अलग होती है। किसी को उतना ही डैमेज रहेगा, वो बोलेगा कि बहुत तकलीफ़ है, कोई दूसरा इंसान बोलेगा कि नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो मैनेज कर लेता हूँ। तो वो जो हर एक इंसान के हिसाब से जो हमें इलाज करना पड़ता है। आपने पूछा था अभी कि स्टेरॉयड के इंजेक्शन के लिए, तो इस पर मैं एक अगर पॉइंट इनको बता देता हूँ कि स्टेरॉयड इंजेक्शन सबसे कॉमन इंजेक्शन है जो पूरे दुनिया में दी जाती है। लेकिन अभी नई रिसर्च आ रही है कि स्टेरॉयड इंजेक्शन से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।
स्टेरॉयड की एक खराबी अभी पाई जा रही है कि वो आर्थराइटिस को थोड़ा एक्सेलरेट भी कर सकती है। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कंसर्न आ गया है कि अगर आपको स्टेरॉयड देता हूँ तो हो सकता है आर्थराइटिस थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर जाए। तो दूसरी इंजेक्शंस भी हैं जो हम पेशेंट्स को अपने देते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसको कवर नहीं करेगा, क्योंकि ये एक, जैसा आपने बताया, बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो आपका सवाल था कि कैसे असेस करना है। पेशेंट अगर तकलीफ़ में है, अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैं 100 गज़ चलता हूँ फिर मुझे रुकना पड़ता है, मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मैं बैठा रहता हूँ और 10 मिनट बैठा, अगर उसके बाद मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि जकड़ गया है, जॉइंट एकदम बिल्कुल स्टिफ हो गया है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट क्या महसूस कर रहा है। अगर पेशेंट ठीक से सो नहीं पाता है, ठीक से सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर नहीं जा पाता है, तो जो पेशेंट की तकलीफ़ है उसको हमें एड्रेस करना है। लेकिन हर एक प्रॉब्लम का इलाज नी रिप्लेसमेंट नहीं है। हमें ये देखना है कि बिना नी रिप्लेसमेंट किए हम कर सकते हैं, उसको कुछ बेनिफिट दे सकते हैं या नहीं, और वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपने जैसे कहा कि आप टैबलेट्स देते हो, आप इंजेक्शंस देते हो। लेकिन आपने अभी कहा कि स्टीरॉयड इंजेक्शन जो है वो डैमेज भी कर सकता है, बट दैट रिसर्च इज स्टिल ऑनगोइंग। दैट्स राइट। तो अभी स्टीरॉयड इंजेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभी आप इंजेक्शन दे सकते हो, लेकिन जितनी पहले देते थे उससे कोशिश करनी है कि कम दें। थोड़ा सा मैं यहाँ मुद्दा ये है कि ना ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਆ वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, यूरोप में भी है, यहाँ भी है। सो अलग अलग थाहों में ऑर्थोपीडिक सर्जरी की सहूलतें, एक्सपर्टीज़ वगैरह तो सभी पासे हैं। कैसे हम एडवाइस कर सकते हैं हमारे स्रोतों को कि लुक, जहाँ भी आप हो, आप कई होंगे कि मैंने पहले मेरी नी का ऑपरेशन कर दिया, मैंने अभी कराना नहीं था। कई होंगे कहेंगे कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि तुम ना कराओ। सो थोड़ा सा उनके लिए चानन क्या है कि हाउ, जहाँ भी वे बैठे हैं, वो पाकिस्तान, इंडिया, जो भी था हमें, व्हाट वुड यू बी योर सजेशन? आप वहाँ जाके भी लेक्चर करते हो, वहाँ भी बताते हो, थोड़ा सा हम। अब जैसे आप बोल रहे थे कि बॉडी मास इंडेक्स जो बॉडी वेट का है वो भी कॉन्सेप्ट है कि कब सर्जरी करनी चाहिए कब नहीं। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन, दोनों सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका वजन जितना है, आप अपने नेचुरल घुटने पर भी उतना प्रेशर देते हैं, और रिप्लेस अगर घुटना रहेगा तो उस पर भी आप उतना ही प्रेशर देंगे, लेकिन सिर्फ आपके वजन का प्रेशर नहीं जाएगा घुटने पे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपका वेट है 100 किलो, अगर आप सीधे सीधे खड़े हो तो दोनों पैर पर आपके कभी इधर भी 50 किलो जाएंगे, इधर भी 50 किलो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां आप एक पैर उठा के चलने के लिए खड़े होते हो, तो एक पैर पे, एक घुटने पे जो आपका प्रेशर जाएगा वो 100 किलो नहीं रहेगा, वो 350 किलो रहेगा, क्योंकि जो बॉडी जिस तरह से टिल्ट करती है, इसका लीवर आर्म का इफेक्ट होता है, तो वो मल्टीप्लाई कर जाता है 3.5 से। तो हर एक स्टेप के साथ आप 350 किलो एक बार इधर देंगे, 350 किलो इधर देंगे। अगर आप हल्के से दौड़ते भी हो तब फिर और बढ़ जाता है, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 500 किलो आप एक घुटने पे दोगे और 500 किलो दूसरे घुटने पे देंगे। तो आप ये समझ लो कि अगर आप इतना वजन दे रहे हो अपने खुद के घुटने पर, तो तकलीफ तो होगी ना। आप जितना वेट कम करोगे आपके लिए उतना बेहतर है। और इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अगर हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं आपकी, तो नी रिप्लेसमेंट में आप उसको बाद में मैं फिर बताऊंगा कि उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है, और अगर आप उस पर ज़्यादा वजन देते हो तो नी रिप्लेसमेंट जो आपकी की हुई है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए नी रिप्लेसमेंट की भी हिफाजत करना बिल्कुल आपके हाथ में है, वजन कम करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने जो दूसरा सवाल पूछा था कि और क्या हम कर सकते हैं, तो इंजेक्शंस और भी बहुत तरह के होते हैं। तो
तो उनके बारे में फिर हम लोग और बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अभी जैसे कि और वही ना, जैसी बात कर रहे थे कि कई कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद इसकी 10 साल की लाइसेंस है, या 10 साल में ये Life- खराब हो हाँ। जाए, लाइफ स्पैन है, हाँ। और 10 साल से पहले मुझे फिर गोडा फिर मैंने कराना पड़ेगा। तो कई कहते हैं मैं अभी तक वहां पहुंचा नहीं है, या पहुंच ही नहीं हूँ, उसके लिए वो आंसर क्या है आपके? हाँ, आपने शुरू में जो एक पूछा था वो मैं उसका जवाब देना भूल गया कि कोई डॉक्टर बोलता है कि नहीं आपको करवा लेना चाहिए, कोई बोलता है कि नहीं आपको नहीं करवाना चाहिए। उसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आप अपने डॉक्टर से पूछो, और आप एक्सरे देखो भी। एक्सरे में आपको देखना है कि क्या दोनों हड्डियां रगड़ खा रही हैं। जुड़ गई। जस्ट वन क्वेश्चन, सिर्फ एक सवाल। अगर दोनों हड्डियां रगड़ खा रही हैं तो फिर आपकी स्टेज आ गई है नी रिप्लेसमेंट कराने की। बहुत डिफरेंट टाइप के भी नी रिप्लेसमेंट होते हैं, लेकिन नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कंसिडर करने की आपकी स्टेज आ गई है। लेकिन अगर दोनों हड्डियों के बीच में गैप है, पतली सी भी गैप है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो बिना नी रिप्लेसमेंट कराए हुए। पर आम अपने ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ पूरा गैप है नहीं, आपको कराना पड़ेगा। सो थोड़ा सा ये मुद्दा है ट्रस्ट का, थोड़ा सा मुद्दा है कि क्योंकि कई मैंने देखा है कई कंट्रीज में जाके अपना पूरा MRI बॉडी का करा देते हैं और कहते हैं तुमको ये भी कराना पड़ेगा, ये भी कराना पड़ेगा, वो भी कराना पड़ेगा। हड्डियों की प्रॉब्लम का ये है कि जब उनको पता ही नहीं है एक्सरे को कैसे देखना है, अपनी लाइफ के लिए उनको क्या देखना चाहिए कि लोग अब मुझे करा लेना चाहिए, और डरना कितना चाहिए कि 10 साल बाद मुझे फिर कराना पड़ेगा। ओके, तो ये सेकंड पार्ट का मैं पहले जवाब दूंगा। अगर ये नी रिप्लेसमेंट अच्छी सर्जरी नहीं होती तो पूरे दुनिया में नहीं होती। कोई ख़राब सर्जरी आपके लिए क्यों करना चाहेगा, आपके लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके दोस्तों के लिए। मैं ख़राब इंसान तो नहीं हूँ। अगर मैंने ऑपरेशन अगर की, नी रिप्लेसमेंट की है, तो मैंने तो आपके लिए की ना, कि आपको बेहतर हो, आपको फ़ायदा हो उससे। इसलिए आप ये मान के चलो कि नी रिप्लेसमेंट एज सच सर्जरी ख़राब नहीं है। खराबियाँ दो तरीके से होती हैं। एक तो अगर सर्जरी अगर अच्छे से नहीं की गई हो, इसका एक बहुत बड़ा मसला होता है कि आप किसी भी चीज़ को, अगर आपने कपड़े भी सिलवाए हो, अगर आपके कपड़े को ठीक से किसी ने नहीं सिला हो तो वो तो सही नहीं होगा ना, और हर एक दर्जी तो बराबर नहीं होता है। तो उसी तरह से सर्जरी एक तो अच्छी होनी चाहिए, एंड दूसरी है कि आप उसकी कैसे हिफाजत करते हैं। आपको एक्सरसाइज करनी थी, आपका वज़न कम करना था, आपको और चीज़ें क्या करनी थी। और जहाँ तक लाइफ स्पैन का जो आपने पूछा, हाँ, जब मैं जूनियर डॉक्टर था उस समय भी मुझे यही सुनने को आता था कि नी रिप्लेसमेंट करा लिया तो 10 साल के बाद फिर इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, फिर से कराना पड़ेगा। वो सब बिल्कुल गलत है। चीज़ें इम्प्रूव कर गई हैं, टेक्निक इम्प्रूव कर गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई है। अब हम ये कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, हम अपनी ज़ुबानी सिर्फ नहीं बताते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे हड्डी, अगर ऑपरेशन के समय हड्डी न टूट गई हो या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन न लग गया हो, अगर ये सब नहीं है तो नी रिप्लेसमेंट का सर्वाइवल 10 साल का परसेंटेज है 95 to 97%। इसका मतलब ये होता है कि 10 साल में भी आपको 97% चांस है कि नी सही काम कर रहा होगा। तो आप ये सोच लो कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आपको 97% मार्क्स कोई अगर दे रहा है, आप खुश तो होगे ना। और ये तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये तो आपके बॉडी पर ऐसी चीज़ है जो जिस पर कोई सर्जन कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकता है। वैसे ही अगर आप 10 ईयर्स से बढ़ जाओ, 20 ईयर्स कर दो, तो 20 ईयर्स पे आपके नी रिप्लेसमेंट का सर्वाइवल का चांस है 85% से भी ज़्यादा। 30 ईयर्स पे, 30 साल, चांस ऑफ सर्वाइवल इज 75%। तो 30 साल बाद भी 75% चांस है कि आपका घुट्टा सही काम करता होगा अगर आपने उसकी लुकिंग आफ्टर कर दी है। हाँ, that was मेरे लिए तो ये एक ਚਾਨਣ की ਗੱਲ ਸੀਗੀ, क्योंकि आम ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ स्टैटिस्टिक एक ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ बहुत पुराना सा है। सो आपने बहुत नाइसली ये सब सुनने वालों को बता दिया। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀਵੀਅਰ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਹੈ,
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ मज़ा आना शुरू हो जाता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये इस पे मैं एक बात आपको को मैं एग्जांपल दूँ. अभी जैसे आपको बताया ना कि मैं अभी इंडिया गया हुआ था, तो हमारे एक जान पहचान है, उन्होंने कहा कि प्लीज़ डॉक्टर साहब आकर के मेरे फादर इन लॉ के घुटने का ऑपरेशन हुआ है, आप ज़रा एक बार चेक कर लो. तो मैं बोला कहाँ, मैं ज़रूर जाकर के मैंने चेक किया. तो उनके साथ थोड़ा सा मिसहैप हुआ था कि नी रिप्लेसमेंट हुई थी, किसी बड़े शहर में बड़े यूनिट में हुई थी, लेकिन इन्फेक्शन हो गया था. उसके बाद उसको हटा करके रिवीजन सर्जरी करके फिर दूसरी नी लगा दी गई थी और अच्छे से लगाई हुई थी. लेकिन जो फियर फैक्टर होता, जो हमारे लोगों में जो डर का की फीलिंग होती है, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि वो अपने रूम से, उनकी उम्र करीब सिर्फ 75 साल की थी, अपने रूम से वो सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर जाके ड्राइंग रूम में बैठते थे और उसके बाद फिर वापस अपने रूम में, उनको खुद एक अपने आप को एक अपाहिज महसूस करने लगे थे. और उनका बेटा कहता था कि आप चलिए, बाहर चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ. तो मैं नहीं चल सकता. तो उसके लिए व्हील चेयर आती थी और व्हील चेयर पर चलते थे. ये माइंडसेट जो है ना, ये चेंज जो आपने कहा बहुत सही कहा कि जो डिप्रेशन हो जाती है, जो एक डर की फीलिंग आ जाती है, उससे आपको बाहर निकलना है. एक बार ऑपरेशन हो गया और आपके डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपका घुटना सही है, आप ट्राई करो नॉर्मल लाइफ लीड करने की. नॉर्मल नहीं होगा, जो रिप्लेस मैं करता हूँ, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पर्पस इस घुटने नी रिप्लेसमेंट का है कि पेन से मैं आपको रिलीव कर दूँ. इसका पर्पस ये नहीं है कि आपका घुटना अब एक 20 साल के लड़के का घुटना हो जाए. ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई नया नरोआ गोडा पै गया, पर ਇਹਦਾ ਇਹ नहीं मतलब हैगा कि ਤੁਸੀਂ 20 साल के बंदे भी हो गए. बिल्कुल. सो हमारे पास एक 3 मिनट अब इस शो में है. वो 3 मिनटों में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समराइज, एक चीज नई बात की हमने, फिजियोथेरेपी आफ्टर नी ऑपरेशन, रिहैबिलिटेशन. थोड़ा दसो कि हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज. इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आजकल तो हम रिहैबिलिटेशन के पहले प्रीहैबिलिटेशन बोलते हैं. प्रीहैबिलिटेशन का मतलब है कि ऑपरेशन के पहले आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने शुरू कर दो, अपनी घुटनों को और मोड़ना शुरू कर दो. क्योंकि जब इंसान अपने घर पे रहता है, उसे नहीं मालूम रहता है क्या करना है. एक बार आप डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर साहब आपको कनेक्ट करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, तो फिर वो आपको समझाता है कि पहले से, ऑपरेशन के पहले से कैसे स्ट्रॉन्ग करो. फिर ऑपरेशन के बाद तो करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि फिजियोथेरेपिस्ट तो आपके पास आएगा दिन में आधे घंटे के लिए या हफ्ते में 2 बार के लिए आएगा. बाकी टाइम आप क्या करोगे? आप ऐसे ही बैठे रहोगे? नहीं, वैसे नहीं बैठना है. आपको खुद से, फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइडेंस दे रहा है. जैसे टीचर आपको गाइड करता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ाई तो आपको खुद करनी पड़ती है. जब आप नहीं पढ़ोगे, आपको ज्ञान नहीं आएगा. उसी तरह से फिजियोथेरेपी आपको खुद करनी है कि आपकी मसल स्ट्रांग हो, आपकी जॉइंट की मूवमेंट हो. और बिफोर वी गेट ऑन टू एनीथिंग एल्स, जब मैंने एक चीज़ सिर्फ कही थी कि अगर छोटे पार्ट से, अगर किसी एक कोने से अगर आर्थराइटिस स्टार्ट है, तो आप इस बात का ध्यान रखो कि टेक्नोलॉजी हमारी अब बढ़ गई है कि हम सिर्फ उस पार्ट को रिप्लेस करेंगे. जो अच्छी पार्ट्स हैं आपके घुटने के, उनको रिप्लेस नहीं करना चाहिए. ये टेक्नोलॉजी सारी जगह नहीं है. जैसे जिसको आप पार्शियल नहीं रिप्लेस. हाँ, सो नी पूरी नहीं बदलनी पैंदी हमेशा ही, कई बारी हाफ नी or some of the knee yes. can be replaced. So closing remarks, and ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਿਵਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਾਫੀ ਨੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ. ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ your closing comments for all of our listeners, कि आप क्या, what would you like to say to them? Okay, मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा. पहली चीज़ तो है कि तकलीफ़ बहुत सिवियर होने के पहले आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि अगर आपको नी रिप्लेसमेंट से बचना है तो तकलीफ़ शुरू होने के पहले ही आपको करना पड़ेगा, जिससे आप बच सको. ये नंबर 1 है. नंबर 2 है कि आप ऐसे सर्जन के पास जाओ जो नी सर्जरी पर डेडिकेटेड हो. अगर उसके पास अगर टेक्नोलॉजी है कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट कर सके, अगर आप सूटेबल हो, तो वो आपके लिए बहुत बेटर है टोटल नी रिप्लेसमेंट के कंपैरिजन में. लेकिन ये सब जगह नहीं है.
और तीसरी चीज़ है कि नी रिप्लेसमेंट पेनफुल ऑपरेशन ज़रूर है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है। आपको डरना नहीं है। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो डॉक्टर साहब ने कहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान रखते हुए आप अगर करा लेते हो, आपकी तकलीफ़ कम हो जाती है। ज़मीन पर बैठने में घुटना फिरे पालथी मार के बैठने में शायद ना पॉसिबल हो, लेकिन तकलीफ़ में आराम हो जाएगी, आप चलने लगोगे मच बेटर। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने खुद का ख्याल रखो और वज़न पर ध्यान दो और हेल्थ पर। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਣਨੇ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਦਾ ਆने का ਕਿ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।